Hello students, once again welcome back here in writing section. Today we have a very important chapter and that is you all can see letter writing. So today we are just moving forward towards letter writing. In this chapter, in this study, we are going to see how to write a formal and informal letter and what are the definitions of these letters and why these letters are important for us not only in our examination but also in our daily life. Okay, so let us start here from the first page. I am going to explain here some golden rules for writing the letter. कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम होते हैं लेटर को लिखने के लिए, ठीक है। तो लेटर को लिखने से पहले बिफोर राइटिंग अ लेटर वी मस्ट कीप इन आवर माइंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड दोज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आर गिवन एज अंडर in this slide. Okay, so I am expecting from my all students that they have pen and copy to note down these golden rules, and after noting down, after keeping it well in their mind, they will start writing, they will start drafting the letters. Okay, so these rules are, फर्स्ट रूल ये होता है किसी भी लेटर को लिखने से पहले दिमाग में ये बना के रखना चाहिए कि वो लेटर शुड बी करेक्ट. द रीडर मस्ट बी एबल टू सी एग्जैक्टली व्हाट यू मीन. मतलब जो आप लेटर लिख रहे हो वो जिसको लिख रहे हो तो उस रीडर को ये समझ में आना चाहिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हो, क्या चीज़ लिख रहे हो, आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है इस लेटर में. इसलिए वो लेटर पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए. एंड सेकेंड गोल्डन रूल, यूज शॉर्ट सेंटेंसेज. डू नॉट राइट सेंटेंसेज दैट आर टू कॉम्प्लिकेटेड. मीन्स वेन एवर any person used to write the letters they make a long writings, so just avoid writing long writings. Okay, and you can use your sentences in small sentences. Okay, and do not write some complicated things. बहुत ही कोई जटिल चीज़, बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है. You have to use your easy and short sentences. Okay, and third golden rule is do not make mistakes in grammar. Suppose that you are writing that I am going, I going is completely false sentence, so don't use grammatically incorrect sentences. You should always use grammatically correct sentences. Punctuation or spelling as the distract the reader. ऑलवेज गो थ्रू योर ड्राफ्ट. ओके, ड्राफ्ट के थ्रू ही मैं जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि एक लेटर को लिखने के ड्राफ्ट्स में क्या क्या होते हैं, हाउ कैन वी ड्राफ्ट अ लेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये एकदम ड्राफ्ट के थ्रू ही जाना चाहिए. ये नहीं कि हमारा सैल्यूटेशन फर्स्ट पे हो जाए और डेट लास्ट में हो जाए, फिर बीच में हो जाए, या सब्जेक्ट को हम सबसे ऊपर ले जा करके रख दें. नो, वी आर नॉट गोइंग टू कमिट सच काइंड्स ऑफ द मिस्टेक्स while writing a letter. We should always be careful, and keeping all these things in our mind, we have to draft our letter according to the rule of the process. Okay, so first third thing, do not make any mistakes in the grammar, punctuation and spellings mistakes भी नहीं होनी चाहिए as the distract. क्योंकि अगर आप ये सारी गलतियाँ करते हो, if you are committing such kinds of the mistakes, that is grammatical mistake, that is spelling mistakes, so it will distract the reader. ये जो रीडर जब पढ़ेगा आपके लेटर को तो उसको वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये सारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. द रीडर ऑलवेज गो थ्रू योर ड्राफ्ट. मतलब रीडर को हमेशा, जो आपका लेटर पढ़ रहा है, द पर्सन हु इज रीडिंग योर लेटर शुड ऑलवेज गो थ्रू द ड्राफ्ट ऑफ द लेटर. ओके, नेक्स्ट रूल. What is the next rule? Yes, rule number 4. This is the golden rule. That is why I have written in yellow color. Okay, so that you could note down this golden rule. Fourth rule, your letters should be complete. They must give complete information.
आपका जो लेटर है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेटर को बीच में लिख करके, आधा लिख करके और लास्ट वाली लाइन सब छोड़ दी। आपका मतलब क्या है वो वहाँ पर क्लियर नहीं होगा। योर मीन्स इज नॉट गोइंग टू बी क्लियर, देन इट विल certainly distract the mind of the reader. So not for distraction of the reader's mind, your letter should be complete and they must give complete information. और उस लेटर में आपने क्या लिखा है रीडर को उसका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, मीन्स दे मस्ट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिफ्थ नंबर, राइट योर लेटर इन पैराग्राफ्स। आपके लेटर को पैराग्राफ्स में लिखना है। जैसे सैल्यूटेशन, इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइटिंग सैल्यूटेशन, सो इट विल बी इन द पैराग्राफ्स। राइट ईच सेपरेट आइडिया इन सेपरेट पैराग्राफ्स, मतलब आपके सभी आइडियाज़ अलग अलग पैराग्राफ में होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ही पैराग्राफ में अपने सारे आइडियाज़ को उसमें एग्जिस्ट कर दिया। नो, यू शुड नॉट exist your all ideas within a paragraph. You should always change your paragraphs according to your ideas. Next thing, decide what you are going to say before you start writing your letter. Suppose that you are going to write a letter and there is nothing, any idea in your mind what you are going to write to the reader. So it will not help you to frame a correct letter. So before writing a letter, you should keep your mind clean so that you could write a letter and could show your ideas in all those paragraphs. Seventh rule, break up a long sentences into two short and simple sentences. Suppose that if you have a long sentence and you are not able to write it into short sentences, so therefore you can just separate your long compositions, long sentences into some small parts. जैसे कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस बहुत ही लंबा जा रहा है तो उस सेंटेंस को आप पार्ट में तोड़ करके लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका जो सेंटेंस होगा वो छोटे छोटे हो जाएंगे। वेयर एवर यू फील द नीड, मतलब जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए और वहाँ पर वो बड़े जा रहे हैं, तो उस सेंटेंसेस को पार्ट में यू कैन ब्रेक। ठीक है, सो ब्रेक अप अ लॉन्ग सेंटेंस इनटू टू शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस वेयर एवर यू फील द नीड। Now let us see the next slide. In this slide I am going to explain you how to write a letter. What should be the exact framing of a letter. In this slide, no, not in this slide. In this slide you will read the definition of the letter and importance of the letter. Why a letter is important in perspective of today's life. Okay, while there are a lot of messaging, lot of telephonic conversation between two persons, however, why we should need a letter. Okay, so this is the definition. You can note down the definition of the letter. Letter or an effective means of communication in spite of modern technologies like cell phones and SMS. Letter still holds its important and prominent place in the field of communication. Letters आज भी बातचीत के साधन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ तक कि जो हमारे आधुनिक जीवन में जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे कि सेल फोन, SMS, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज करते हैं, उसके बावजूद भी लेटर जो है बहुत ही प्रभावी साधन माना जाता है कम्युनिकेशन के लिए। इसीलिए लास्ट वाला पैराग्राफ में ये मैं कह रहा हूँ कि लेटर स्टिल होल्ड्स इट्स इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट प्लेस, मतलब अब भी इस मॉडर्न युग में भी जो लेटर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक स्थान रखता है बातचीत करने के लिए। सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द लेटर, मीन्स लेटर आर एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पाइट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक सेल फोन्स एंड SMS. Letter still holds its important and prominent place in the field of communication. Now, how many types of letter?
So I think that you all have well understood, well known that there are two kinds of the letter, that is formal letter and informal letter. Formal letter and informal letter. So dear students, as far as we are going to talk about the informal letter, that is the second kind of the letter. So this is very simple. But in the first type of the letter, that is formal letter, we face from a major extent of the difficulties in writing. मतलब अगर पहले प्रकार के लेटर के बारे में बात की जाए, यानी कि फॉर्मल लेटर, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है जो कि फॉर्मल लेटर होता है. और सेकेंड वाला जो टाइप है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक प्रकार के जो पत्र होते हैं वो बहुत ही आसानी से लिखे जा सकते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स में बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं होते हैं, बस आपको अपने माइंड को सेट करना होता है. यू हैव टू राइट ओनली योर नेम, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड बॉडी ऑफ द लेटर. फाइनली सिंसरली योर फेथफुली, थैंकिंग यू. ठीक है, ऐसे करके आप अपना नेम या फिर साइन कर सकते हो. लेकिन फर्स्ट प्रकार का जो लेटर है फॉर्मल लेटर, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मल लेटर. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आई विल आल्सो शो यू सम फ्रेमिंग ऑफ द लेटर. पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर, मतलब एक फॉर्मल लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिन्हें हमें ड्राफ्ट करने से पहले माइंड सेट करना चाहिए. सो वी शुड set our mind before drafting a formal letter. What are those? First thing, सेंडर्स एड्रेस. अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें सेंडर्स का एड्रेस लिखना चाहिए. वी शुड ऑलवेज राइट फर्स्ट टाइम द सेंडर एड्रेस. एंड सेकेंड थिंग, डेट. ओके, सपोज दैट यू आर राइटिंग द लेटर टुडे, सो यू विल राइट देयर टुडेज डेट. और डेट कैसे लिखोगे? डेट 5th September 5th 2020 ऐसे. एंड थर्ड, रिसीवर एड्रेस, मतलब सेंडर एड्रेस लिखने के बाद डेट, और थर्ड पर लिखोगे आप रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो, रीडर को, रीडर्स एड्रेस भी होना चाहिए उसमें. फोर्थ थिंग्स, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग्स लाइक डियर सर, डियर मैडम, जिनको भी आप लिख रहे हो, डियर मैनेजर, डियर एडिटर, एनीथिंग, डियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सॉरी, ऐसे मतलब आप लिख सकते हो. फिफ्थ नंबर, यू विल राइट योर सब्जेक्ट एंड योर सब्जेक्ट शुड बी इन अ बोल्ड लेटर्स. इन अ बोल्ड लेटर्स, इट मे आल्सो बी अंडरलाइंड. ओके, मीन्स वाई आर यू गोइंग टू राइट अ सब्जेक्ट, रीजन फॉर राइटिंग द लेटर. सिक्स्थ नंबर, बॉडी ऑफ लेटर. व्हाट इज द बॉडी ऑफ द लेटर? लिसन, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट. और इसी के लिए अगर आपके क्वेश्चंस में 8 मार्क्स हैं तो 4 मार्क्स सिर्फ आप बॉडी ऑफ द लेटर के लिए पाते हो. इफ़ यू आर राइटिंग करेक्ट बॉडी ऑफ द लेटर विदाउट मेकिंग एनी spelling mistakes, any grammatical mistakes, so therefore you can gain 4 marks at least from the body of the letter. Okay, so what should be the body of the letter? It should be written into 3 paragraphs. Body of the letter should be written into 3 paragraphs. What are those? First paragraph, this contains the description of the contents. मतलब ये body जो होता है लेटर का, ये contents का एक description होता है. इस कंटेंट्स में पूरा एक डिस्क्रिप्शन होता है. इट शुड बी रिटन इन सिंपल, डायरेक्ट एंड फॉर्मल लैंग्वेज. मतलब इसको एकदम साधारण, सीधी भाषाओं में, इनडायरेक्ट नहीं लिखा जाता है. ठीक है, सीधी भाषाओं में, और इसको एकदम से फॉर्मली लैंग्वेज में यूज़ करना चाहिए. द कंटेंट शुड बी कन्वेड इन मिनिमम 3 पैराग्राफ्स. और जो कंटेंट है, मैंने पहले ही बताया कि कंटेंट को 3 पैराग्राफ्स में हम लोग लिख सकते हैं. द फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्टरी और रीस्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब पहले वाले पैराग्राफ में हमें इंट्रोड्यूस करना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द राइटर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड राइटिंग दिस लेटर. एंड सेकेंड थिंग, second paragraph should state the problem or issue in detail.
मतलब जो सेकेंड पैराग्राफ होगा बॉडी ऑफ द लेटर का, वो आपके प्रॉब्लम को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। एंड द थर्ड पैराग्राफ स्टेट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू द रिसीवर्स ऑफ द लेटर। मतलब जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा बॉडी ऑफ द लेटर का, वो ये आपको बताएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आशा कर रहे हो रीडर से, ठीक है। जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जो आपके लेटर को रिसीव करेगा, हु इज गोइंग टू रिसीव योर लेटर, what kind of the expectations you have to with him, okay। Next thing, that is seventh number, subscription। in the subscription you will write your sincerely or your faithfully। आप लोग लास्ट में लिखते हो ना, पूरा लेटर लिखने के बाद लास्ट में लिखोगे, ये इसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसमें लिखोगे योर सिंसरली ऑब्लिक, कुछ भी लिख सकते हो, योर फेथफुली, फाइनली यू विल साइन, ओके। अपना साइन करोगे लास्ट में, एंड then next, how a letter can be framed to the editor। suppose that, अब ये तो हो गया, हमने पहले इससे बताया कि लेटर कैसे लिखा जाता है। सपोज दैट अगर आपको एक लेटर एडिटर को लिखना हो, क्वेश्चन आ गया, अगर क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन गिवन इन योर एग्जामिनेशन इन योर क्वेश्चन पेपर कि यू आर नेहा एंड ऋतिक, यू आर ऋतिक आर नेहा, ठीक है। एड्रेस सो ऑफ सो एंड सो, मतलब अगर आपका एड्रेस दिया है, आपका नेम दिया है, एंड यू आर फेसिंग सच काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, देन राइट ए लेटर, क्वेश्चन में आएगा राइट ए लेटर और फ्रेम ए लेटर टू एन एडिटर टू पब्लिश योर प्रॉब्लम्स इन हिज ऑडिटोरियल, ठीक है। अपने एडिटोरियल में पब्लिश करने के लिए अगर आपको लेटर लिखना है एडिटर को, तो कैसे लिखोगे, हाउ वुड यू फ्रेम सच काइंड्स ऑफ द लेटर इफ यू आर गिवन अ टास्क टू राइट टू द एडिटर। देन लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर, सबसे पहले आप ऊपर एक टाइटल लिखोगे अंडरलाइन करके, लेटर टू द एडिटर। सेकेंड थिंग, पटेल नगर, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, या फिर जहाँ पर भी आप रह रहे हो, वेयर एवर यू आर लिविंग, यू विल राइट योर करेंट एड्रेस, ओके। सो आई हैव गिवन हियर पटेल नगर, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, मीन्स योर एड्रेस शुड बी एट लीस्ट इन 2 lines। it does not mean that you are going to just finish your address within 1 line, okay। so your address should always be finished into 2 lines। next thing, you will write date which way, like 4th September 2020। अगर आज सपोज दैट 25 सितंबर है, तो यू विल राइट 25th September 2020। next thing, the editor, and it should be in a bold letters, in a capital letters, or you may write first letter in capital, then rest of the letters in small letters, the editor। then name of the newspaper, suppose that अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हो, you will write here टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ओके, द हिंदू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसको भी लिख रहे हो, जिस भी एडिटर को लिख रहे हो, जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को, यू विल राइट हियर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट थिंग, वंस अगेन यू विल राइट द एड्रेस, जहाँ पर आप लोग उस एडिटर को लिख रहे हो, उस न्यूज़पेपर का जो एड्रेस है। नेक्स्ट थिंग, you will write once again subject, and finally you will write the salutation। in salutation you will write dear sir or dear madam। body of the letter, once again we are moving there, and here also you will write your body of the letter into 3 paragraphs। your paragraph should be clear, simple and directive। in the first paragraph I have already explained you what you will write। there are 3 paragraphs, leave 1 line between paragraphs and start fresh paragraphs the margin। yours faithfully, sincerely, once again signature and the name in capital letters। so dear students, it was the today's topic, how to write a formal letter। I hope that it is very clear to all of you,
and if you have any kind of the confusion, doubts and the problems while writing any formal letters, you can just ask me. So once more लेटर आई एम जस्ट शोइंग यू, सपोज दैट अगर आपको कोई कंप्लेंट लेटर लिखना है, हाउ शुड यू राइट, अगर कोई भी कंप्लेंट करना है, हाउ शुड यू राइट. सो फर्स्ट एड्रेस ऑफ गिवन. कंप्लेंट में हमें क्या करना होता है, बॉडी ऑफ द लेटर बस चेंज होगा. ठीक है, यही मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू which way we can write the body of the letter if we are complaining someone. Then the manager, okay, नेम ऑफ कंपनी और एजेंसी. जैसे कि हमने कुछ खरीदा है, ठीक है, कुछ खरीदा है और वो ख़राब हो गया. क्वेश्चन हमारा ये है कि यू आर रितु, नेहा, स्नेहा, साहिल, अभिषेक, एनीथिंग. एड्रेस भी दिया है एंड यू हैव परचेज्ड अ न्यू कूलर फ्रॉम एनी कंपनी and it has become completely vain, your money have gone completely in vain. So therefore how should you write a complaint letter to the manager of that company? Okay, so this is the way of writing the letter. Fourth number, name of the company or agency. Once again you will write the address of the company and the agency, and then subject, and your subject should be in a bold letters, capital letters. You can also underline that letters. Once again, dear madam, dear sir, that is the salutation. And body of the letter, once again, what is the this is the importance. Here you will write the importance of the body of the letter. First paragraph in the body of the letter you will write purchased, when you will purchase that item. Okay, suppose that you have purchased a cooler, you have purchased a refrigerator, then you will write the date and timing of purchasing that item. Okay, means when. And second thing, you will write where, from where you have purchased that, and what is the model number of that item, and what is the bill number of that item. Next thing, that is paragraph number 2. You will write the technical complaints. What are the problems are facing by you in that item? In this paragraph you will write. Paragraph number 3rd, since. Last में ये लिखोगे so and so item is under warranty, so kindly replace it within. जितने दिनों में अगर आप रिप्लेस करवाने के लिए कंप्लेन लेटर लिख रहे हो मैनेजर को, वो लिखोगे. फिर उसके बाद फाइनली यू कैन राइट फेलिंग विच आई विल मूव टू द कंज्यूमर कोर्ट. ओके, नेक्स्ट, योर्स फेथफुली, योर सिंसरली, साइन, कैपिटल लेटर्स, नेम इन कैपिटल लेटर्स. दैट्स इट, एंड थैंकिंग यू फॉर पेशेंस हियरिंग मी and understanding, for listening, and for framing such kinds of the letter. And I am also expecting from all my students that they will like and subscribe. So please like and subscribe my channel. Thank you once again. Bye. We will meet again in the next class.